Hello and welcome, my dear students of 12th Standard English Medium. Okay, once again, I welcome back to my class of English, and today we are going to discuss a poem of your textbook, Flamingo. In fact, it's the first poem, My Mother at 66, which has been written by Kamala Das, who was born in 1934. It's a very nice poem. It's a kind of poem which is relevant to sort of realistic feeling that every one of us would have at some stage of our lives. Okay, एक ऐसी कविता है ये जो कमला दास ने लिखी है वो कि जीवन के किसी भी स्टेज पर एक ऐसा स्टेज आता है जब हमें हर एक को ये महसूस होता है, ये वो टाइप का फीलिंग जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस कविता में. But before we try and understand the poem as such, let us try and take the introduction of the poetess. Okay, about the poet. अगर आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है तो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक ओके उसमें पेज नंबर 90 के ऊपर ये पोएम है. So please open page number 90 in case if you have a textbook and concentrate the paragraph that I'm reading about the poetess's introduction. Kamala Das was born in 1934, was born in Malabar, Kerala. ठीक है, साउथ इंडिया का जो केरला स्टेट है उसके मालाबार रीजन में, जो कि बहुत ही फेमस है कॉफी प्रोडक्शन के लिए, शायद आपने पढ़ा होगा ये कहीं पे, वहां पे उनका जन्म हुआ था. शी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स. ओके, इंडिया के यानी इंडियन इंग्लिश पोएट्स जो लिखते हैं, इंडिया के पोएट्स या राइटर्स जो इंग्लिश में लिखते हैं उनमें उनका काफी नाम है. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. उनके वर्क की ये खासियत है कि इंडिजीनियस होता है, ओरिजिनलिटी होता है, प्लस कि कोई ऐसा इमेजिनेटिव सॉर्ट ऑफ there is nothing like an imagination, a pure imagination which is kind of impractical or impossible in practical life. That kind of thing is not there in her creation. So that's the speciality of her writing. ओके, और कई बार ऐसा भी लाइक फील होता है कि उनके राइटिंग में वी कम अक्रॉस द फ्लेवर ऑफ हर सॉइल. वो जिस एरिया से बिलोंग करती है, ठीक है, उस एरिया के मिट्टी की खुशबू यूं समझो कि आने लगती है, क्योंकि उनके वो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड का बहुत ही असरकारक, बहुत ही इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन जो है उनके राइटिंग में देखने को मिलता है. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavikutty. ये एक नाम है उनके फिक्शन कलेक्शन का, शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन का, जिसका नाम माधवीकुट्टी है. मलयालम लैंग्वेज का वर्ड है ये एक्चुअली. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, which was published in 1977. This is the name of the novel. It was the first novel, in fact, which was published in 1977. A collection of short stories, Padmavati, The Harlot, and the other stories. This is the name of the short story collection which was published in 1992. तो आज से 28 साल पहले ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन पब्लिश हुआ था. In addition to that, to 5 books of poetry, like इसके अलावा 5 बुक्स ऐसी उन्होंने पब्लिश की थी जिसमें पोएट्री कलेक्शन है. यानी 5 तो बुक्स हैं, लेकिन in each and every book there are number of poems. So she is actually more popular in terms of writing the poems. And as I told you earlier, she is more inclined towards writing the realistic poems rather than imaginative poems. Okay, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships and लिरिकल इडियम. वो एक सेंसिटिव राइटर है कमला दास, और ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में जब वो खास करके लिखती है तो उनका सेंसिटिविटी जो है, एक सेंटिमेंटलिज्म जिसको कह सकते हैं हम, वो हमें उनके राइटर में देखने को मिलता है. माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. तो ये कविता जो है वो भी उसी चीज का एक एग्जाम्पल है जहां पे वो बाय नेचर कितना सेंसिटिव है वो हमें देखने को मिलता है.
बाय नेचर सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि शी इज पर्टिकुलरली डिस्क्राइबिंग अ वेरी कॉमन मोमेंट ऑफ हर लाइफ इन दिस पोएम. It's a very, very common moment. As a matter of fact, it is not one kind of, a sort of landmark moment for anybody's life. एक ऐसी मोमेंट है जो हर एक के जीवन में आती है और कोई जनरली उसके बारे में इतना ज्यादा सोचता भी नहीं है. But she tends to think about it. Why? Because she was observing that as she was growing young, she could see that her mother was growing older. ये चीज हमारे लिए भी बहुत ही संभव है सोचना कि जैसे जैसे लाइक आप लोगों को भी कभी ना कभी ऐसा फील हुआ होगा, या तो फिर आप फील करोगे बाद में अगर अभी तक नहीं हुआ है तो, कि जैसे जैसे आप यंग होते जा रहे हो वैसे वैसे यंग होने का एक उत्साह तो होता है. एंटरिंग इनटू एडल्टहुड इज वेरी एक्साइटिंग. इट इज full of enthusiasm, and it's the kind of, it reveals the true color of our lives in front of our eyes. It's really a good landmark for us to achieve. लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक नेगेटिविटी ये है कि at the same time as we grow younger we see in front of our eyes our parents growing older. ठीक है, हम जैसे जैसे जवान होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे माँ बाप जो है वो बूढ़े होते जाते हैं, और वो चीज देख के हमें दुख होता है. यानी यंग एज में एंटर होने के साथ दुख करने वाली यही एक बात है, लेकिन वो कोई छोटा मोटा दुख नहीं है. Why? Because when we were kids, we saw our parents younger, and we don't like them to grow older. वो बड़े हो जाए और बड़े में से बूढ़े हो जाए, उनके बाल सफेद हो जाए, चेहरे पे झुर्रियां आ जाए, ये सारी बातें हम एक्चुअली नहीं चाहते हैं. बट एजिंग is a biological process. It's a kind of natural process upon which we do not have any control. So we have to let it happen as it is happening. Okay? वो जिस तरह से होता है उसको होने देना चाहिए, और जीवन की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई, एक बिटर ट्रूथ जो है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि ये लाइफ जो है हमारे पेरेंट्स की चाहे लाइफ हो या हमारी लाइफ, कभी ना कभी तो उसका फुल स्टॉप आने ही वाला है. सो विद द सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस वी हैव टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस. सम सटल चेंजेस, सम नेचुरल चेंजेस वी हैव टू एक्सेप्ट विदाउट एनी मीन्स. और यही बुढ़ापा जो है वो हमें भी कभी ना कभी आएगा, और वो हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये एक बढ़िया मैसेज इस पोएम में दिखाया गया है, मीन्स रिवील किया गया है, आई वुड से. एंड विद दैट सॉर्ट ऑफ सिंपल मैसेज, some or the other way, the poetess also wants to reveal that we should always be grounded on the earth, regardless of whatever status that we enjoy in our lives, because everything will come to an end with our death. ठीक है, हमारी मृत्यु के साथ हर एक चीज का अंत होने वाला है. इसलिए लाइफ का कोई भी स्टेटस हम एंजॉय कर रहे हैं तो उसके ऊपर गर्व या अभिमान हमें नहीं करना चाहिए. सो वेरी ब्यूटीफुल पोएम दैट वी आर गोइंग टू रीड नाउ. ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं पोएम पढ़ूंगा. ओके, अगेन द नेम ऑफ द पोएम इज माय मदर एट 66, व्हिच हैज बीन रिटन बाय कमला दास. ओके, बिफोर यू रीड पे यहाँ पे एक छोटा सा 2 लाइन, like एक 1 लाइनर लिखा है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. एक बहुत ही अच्छा 1 लाइनर है कि जिस तरह से पेरेंट्स बड़े होते यानी कि बूढ़े होते जाते हैं तो हमारा एक जिम्मेदारी बनता है कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए. When they were young, they performed all sorts of responsibility for a better upbringing of us. But as we have grown now and they are getting older, it would be our turn to perform our responsibilities now towards them. इसलिए हमें ये सोचना जरूरी है कि what would they be expecting from us? हमारे से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या क्या एक्सपेक्टेशन की होगी दिमाग में जो बता नहीं रहे हैं.
आपने देखा ही होगा कि जैसे इंसान एजेड हो जाते हैं, वैसे इन मैनी केसेस यू माइट हैव सीन सो फार दैट दे वुड बिकम मोर साइलेंट एज कंपेयर टू द अर्लियर टाइम्स। पहले के मुकाबले वो ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं, कम बोलते हैं। बोलते जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, लेकिन बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, तो कम बोलने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी एक्सपेक्टेशन तो होती है, लेकिन वो बताता नहीं है, इसलिए वो साइलेंट हो जाए। सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड दे बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एजिंग की प्रोसेस के दौरान हमें ये सोचना बहुत जरूरी है हमारे पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, तो उनको कोई समस्या नहीं सताएगी। और सरप्राइजिंगली when we start thinking about their expectation we will come to know कि इतनी ज्यादा उनकी कोई एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है। Let's say for example, in case if you spend around 10 or 15 minutes in a day, अगर आपके घर पे आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर होंगी तो आप ये चीज जरूर करना, मेरा एक पर्सनल एडवाइस है कि एजेड लोगों के साथ अगर 10, 15 या 20 मिनट बैठ के अगर आप बातें भी करोगे ना तो उनका मूड चेंज हो जाएगा। ऑन पॉजिटिव नोट देयर मूड विल सटली चेंज। ओके, एक सटल वे में उनका जो मूड है वो चेंज हो जाएगा एंड देयर डे वुड बी much more better than what they would have thought in the beginning of the day। क्योंकि अदरवाइज एजेड इंसान जो है वो वही सोचते हैं कि आज नया दिन है, लेकिन हमारे लिए नया कुछ नहीं है। वही बस उठ के बैठ जाना, काम इतना ज्यादा उनसे नहीं होता है ऑब्वियसली, जितना होता है वो करते जरूर है, बट दे वुड साइलेंटली बी जस्ट सिटिंग अराउंड इन द हाउस एंड देन दे वुड बी डूइंग देयर डेली चोर्स एंड देन दे वुड हैव देयर फूड इन केस इफ द टाइम कम्स। फिर दोपहर को आराम करते हैं एंड इन केस इफ दे आर लकी इनफ they would spend about an hour or so with the senior citizens of the similar age group in a garden। ये भी आपने देखा होगा कई बार। ओके, रात को वापस उनको खाना होगा, थोड़ा सा टीवी देखेंगे, सो जाएंगे। तो बेसिकली बहुत ही पैसिव टाइप की डल लाइफ उनकी होती है। बट इन बिटवीन दे वुड कॉन्स्टेंटली फील एज इफ दे आर लाइक kept reserved, kept away from the other family members, क्योंकि दूसरे फैमिली मेंबर्स अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो या सपोज आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप उसमें बिजी हो। बट इन एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, जो मैंने आपको आगे बताया कुछ उसी तरह से, उनके साथ थोड़ा सा समय बात करेंगे अगर आप डेली लेवल पे, ठीक है, तो उनको जीवन जीने का, बाकी का जितना भी उनका जीवन बचा है वो जीने का उत्साह जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। ओके, सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट द पोएटेस हैज टॉक्ड अबाउट इन दिस पोएम, कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हालांकि वो बताते नहीं, लेकिन हमें समझना जरूर चाहिए। दैट्स व्हाट शी मीन्स बाय राइटिंग दिस। सो नाउ आई एम रीडिंग दिस पोएम फाइनली। ओके, यहाँ पे पोएटेस जो है वो अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है। सो व्हाट दैट इंसिडेंट वाज, लेट अस ट्राई एंड फाइंड इट आउट। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। ओके, तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि कुछ दिनों पहले की ही बात है, सुबह ड्राइविंग करके, ओके, पेरेंट्स के घर से लाइक कोचिंग से मैं अपने घर पे जा रही थी। पेरेंट्स का घर उनका कोचिंग में था एंड शी वाज ऑब्वियसली लिविंग समवेयर एल्स व्हिच वाज वेरी फार एक्चुअली। तो कार में बैठ के मैं एयरपोर्ट जा रही थी, ऐसा पोएटेस बता रही है। तो उस वक्त मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मेरी मदर आई थी, गाड़ी में मेरे बाजू में ही बैठी थी। फ्राइडे का दिन था, मॉर्निंग का टाइम था, ठीक है, and I saw my mother beside me doze open mouth। okay, वो आधा नींद में है, सो डोजिंग कर रही है, मुंह उनका थोड़ा सा खुला है, नींद में है, अभी सो रही है और मैं उसके सामने देख रही हूँ, उनको नहीं पता है। ओके, her face Asian like that, उनका फेस जो है वो एक निर्जीव की तरह हो गया है।
Okay, Asian like that of a corpse and realized with pain. एक डेड बॉडी होता है, ठीक है, एशियन लाइक दैट, यानी कि राख के जैसा डेड बॉडी को जला देने के बाद जो बॉडी की अवस्था हो जाती है, वैसा एक निर्जीव जैसा उनका फेस हो गया है, ठीक है। और रियलाइज विद पेन, चेहरे पे कोई ना कोई दुख चमक रहा है, हालांकि उनकी लाइफ में ऐसा कोई दुख नहीं है, ठीक है, लेकिन एज के हिसाब से उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, वो पहले की तरह नहीं रहे, ठीक है, और एक बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह वो दिख रही है। ओके, एंड शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट दैट थॉट अवे एंड looked out at young trees sprinting and merry children spilling. थोड़ी देर मैंने उनके बारे में, उनकी ये अवस्था के बारे में सोचा। अब पोएटेस अपने बारे में बता रही है कि थोड़ी देर के बारे में, उनकी एज के बारे में, खास करके उनके बुढ़ापे के बारे में मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, और उसके बाद कार की खिड़की के बाहर मैंने देखा, विंडो से बाहर मैंने देखा, तो क्या देखा उन्होंने? Trees sprinting, the merry children spilling. बाहर का दृश्य जो है वो it is constantly changing because the car was moving fast. ठीक है, पेड़ जो है वो पीछे की तरह सरक रहे हैं, कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक symbolic expression. It is actually this line actually does not describe that particular incident only, बट इट इज अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कि इसी तरह से लाइफ जो है वो भी खत्म हो जाता है, बहुत ही स्पीड से, जितना हम इमेजिन करते हैं उससे भी ज्यादा स्पीड से लाइफ लगातार चलता रहता है, ठीक है। जीवन का जो जर्नी है वो तो रात को अगर हम सो भी रहे हैं तो भी लगातार चलता ही रहता है। तो उस चीज को रिवील करने का, उसको एक्सप्रेस करने का एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है ये, कि पेड़ पीछे की ओर जा रहे थे, बच्चे कहीं पे खेलते हुए नजर आ रहे थे, और पोएटेस को शायद ये भी लगा होगा कि यही बच्चे कल जाके बड़े भी हो जाएंगे, उनका हंसना खेलना कूदना जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम जा रहा है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे घरों में से बाहर छलक रहे हैं, जैसे कि घरों में से बाहर आ रहे हैं। एक ऐसा समय है, मॉर्निंग का समय है, इसलिए सब अपने घरों से बाहर आए, और खास करके बच्चे घरों से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आखिरकार हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए और सिक्योरिटी चेक भी खत्म हो गया। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, ये पहले के समय का ये यानी कि पोएम लिखा हुआ है, इसलिए एयरपोर्ट में अंदर जाने के बाद भी उसकी रेलिंग की उस तरफ पैसेंजर खड़ा है, और इस तरफ उसको छोड़ने आने वाले जो कोई भी है वो बाहर खड़े रहते हैं। जैसा कि एक छोटे से पिक्चर के द्वारा वो चीज समझाया गया, पेज नंबर 90 के ऊपर वो एक छोटा सा इमेज है, जिसमें से आप देख सकते हो कि पोएटेस कमला दास अंदर चली गई है, उनकी मदर जो है वो बाहर खड़ी है, ऊपर एक एरोप्लेन भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो वहां से मैंने देखा एयरपोर्ट के अंदर जाके, और कुछ ही यार्ड जहाँ के थोड़ी दूरी पर मेरी मदर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile, smile and smile. वापस मेरी नजर उनके कलरलेस चेहरे के ऊपर पड़ी। ओके, यहाँ पे वैन का मतलब कलरलेस होता है, वोकैबुलरी में वो चीज दिया गया है। So again I had fixed my sight on her colorless face. ठीक है, ऐसे तो मालूम ही होता है कि my mom like is not any younger now. She has already grown old. लेकिन खास करके उनके कुछ फीचर्स के सामने, चेहरे के सामने जब हम एकदम फ्री होते हैं तब देखते हैं तो हमें पता चलता है। Especially when we have a sensitive nature. Only then we would be in a position to understand such subtle change of life. तो ऐसे ही पोएटस का है कि अभी वो टोटली फ्री है, शी इज विदाउट एनी काइंड ऑफ प्री ऑक्यूपेशन राइट नाउ, शी इज नॉट बिजी राइट नाउ, ऑल दैट शी हैज टू डू इज टू गो बैक होम, ठीक है, वाया एरोप्लेन उनको
अब घर पे जाना है तो बार बार उसके चेहरे पे, मम्मी के चेहरे पे उसकी नजर पड़ती है। वापस उन्होंने देखा कि कलरलेस चेहरा है, फीका पड़ गया है पहले के मुकाबले। एक ऐसा चेहरा है जिसका कंपैरिजन उन्होंने किया है कि इट इज टू बी कंपेयर्ड विद द लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक। ठीक है, बार बार वही पुराना दर्द उनके चेहरे पे झलक जाता था। दर्द दो टाइप के हैं यहाँ पे माँ के चेहरे के ऊपर। पहला दर्द जो है वो बुढ़ापे की वजह से है, और दूसरा जो है कि अपनी डॉटर जो है वो अब उनसे दूर जा रही है, उसका भी दर्द है उनको। ओके, एंड माय ओल्ड चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। दूसरे वाला दर्द जो है अभी मम्मी के चेहरे पर बहुत ही असरकारक है। एक ऐसा दर्द जो पोएटेस को बचपन में हुआ करता था। ठीक है, कि मामा कहीं बाहर जाती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था। आज वो सिचुएशन मामा की हो गई है कि उनकी डॉटर अब दूर जा रही है, अपने घर पे जा रही है, जो कि बहुत ही दूर है, पता नहीं कब आएगी अब। ठीक है, तो वो ओल्ड चाइल्डहुड फियर अब शिफ्ट हो गया है। पहले वो पोएटेस को होता था, अब मम्मी को हो रहा है। ओके, वो दर्द वो अब देख पा रही है, लेकिन फ्लाइट का समय हो गया है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट किए बगैर, आगे बढ़ने बगैर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए उन्होंने आखिर में लिखा है ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। ठीक है, हम जैसे टाटा बाय बाय आवजो गुजरातीમાં આપણે કહીએ છીએ। ठीक है, उसको बोले बगैर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सिर्फ इतना ही किया, मन में दुख था फिर भी स्माइल किया। ठीक है, और टाटा बाय बाय किया और वहां से मैं चली गई। लगातार स्माइल जो है वो डुप्लीकेट स्माइल जिसको हम कह सकते हैं, वो चेहरे पे बनाए रखा। एंड देन आई वेंट ऑफ। उसके बाद मैं चली गई, पोएटेस ने ऐसा आखिर में कहा है। एंड विद दैट नोट द पोएट्री कम्स टू एन एंड। सो इट वाज अ वेरी नाइस रिविलेशन ऑफ अ सेंसिटिव माइंड ऑफ द पोएटेस। और ऐसा एक रियलिस्टिक इंसिडेंट है जो मेरे ख्याल से सभी को कभी ना कभी फील जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पोएम का डिस्कशन खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज पार्ट, again I would recommend to solve it from the camp publication. Okay, but not before you have read the poem at least 2 or 3 times. 2-3 बार पोएम पढ़ने के बाद ही आपको एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना है। And even after that, in case if any doubt remains, then you can definitely you are free to approach me. Okay, मुझे आप बाद में डाउट के लिए पर्सनली मुझे मैसेज करके बता सकते हो। Okay, so with this, actually the syllabus of your second unit test, which has recently been announced and it is going to happen soon, is over. हमारा syllabus second unit test के लिए अब खत्म हो चुका है। इतना है हमारे syllabus में। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हो सकेगा तो एक लेक्चर में और लूंगा जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताने का कोशिश करूंगा। हालांकि कॉम्प्रिहेंशन इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग व्हिच यू हैव बीन अटेम्प्टिंग फॉर many years, okay, for a long time, so you are well aware of it, how to solve comprehension questions. You are well aware of it, but still, in case if I feel like, in case if the time allows, I will definitely conduct a lecture especially on how to solve comprehension. Until then, bye bye for now.